Hi everyone, welcome back to the Code Street. This is Siddhant, and in this video we will be starting off with the introductory lessons to the C++ course that we have started off on this channel. तो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉमिस किया था कि हम जो पहला लेसन करेंगे दैट वुड बी दी वेरी बेसिक्स ऑफ C++ सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट प्रोग्रामिंग एक्चुअली इज. तो इस वीडियो में वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट कम वे बिफोर द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम. लाइक हेलो वर्ल्ड इज कंसिडर्ड टू बी द बेसिक्स ऑफ कोडिंग, राइट? So flowcharts actually come way before the Hello World program, and what these actually are इसको हम आज के वीडियो में समझेंगे. And what I've planned to do is that we will be combining the best of both worlds, that is theoretical knowledge as well as hands-on examples, so that we will be combining both of them. And at the end of this video I hope that the entire topic will be crystal clear to you. ठीक है? So but before that, हम लेसन शुरू करने से पहले let us try to understand and know more about Newton School, जिनके साथ ये वीडियो कोलैबोरेशन में बनी हुई है. So let's hop on to their platform. So Newton School is actually an edtech platform which guarantees you placement. और उनका कहना है कि they will be charging zero fees until and unless you get placed with a minimum package of 5 lakhs. So they are doing this in collaboration with a number of companies which are here to hire you. You can go on to their site and you can watch all the companies who are working in collaboration with Newton School. And इससे भी ज़्यादा बेस्ट बात जो है, there are a lot of courses which they are offering, and these courses are aimed to target a variety of audience, like students like you and me, even professionals who are currently working in some job और वो try कर रहे हैं कि वो switch करें या फिर कोई और भी purpose हो सकता है. Women who have actually got no technical background or they are looking forward to start learning something in the field of tech, उनके लिए भी courses है. So every course is dedicated to a variety of target audience, right? And in the recent times, Newton School has started this Launchpad program of theirs, under which they are giving away courses for free so that everyone can gain knowledge, that too completely free of cost. You can go into the website and under this Launchpad tab आप देख सकते हो कि under this Launchpad tab there is almost everything that a student wants to learn, be it Java, Python, C++, even if you want to start learning database or development activities, उन सब के भी free courses यहाँ available हैं. All you have to do is just enroll yourselves into them और उसके बाद you just have to start learning. ठीक है? So please 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 न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे जाओ और इन सारे कोर्सेज को देखो and just enroll yourself and just get started. In the meantime, let us get back to this what is flowcharts thing और flowchart की पूरी concept को आज समझ के ख़त्म कर देते हैं. So let us start off with the theoretical knowledge. Flowchart होते क्या हैं? Flowchart is actually a graphical representation of an algorithm. Programmers often use it as a program planning tool to solve a problem. It makes use of symbols which are connected among them to indicate the flow of orientation. तो इस बात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोग्राम को जब मैं देखता हूँ, बिफोर आई कैन स्टार्ट कोडिंग ऑन इट, आई हैव टू प्लान आउट द लॉजिक एंड आई हैव टू प्लान आउट द एंटायर फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. लाइक इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, देन आई विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट, राइट? So if I want to present the solution of a program without actually coding it out in a form of a fashion, कोई particular fashion maintain करके without उसको कोड किए यदि मुझे अपनी आइडिया को प्रेजेंट करना है तो वो हम फ्लो चार्ट के थ्रू कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट थिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें समझनी है वो है कि दैट देयर आर सम सिंबल्स यूज्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ डिपिक्टिंग द लॉजिक ऑफ द कोड. तो फ्लो चार्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिपिक्टिंग द लॉजिक ऑफ द कोड इन अ वे अदर देन कोडिंग इट आउट, है ना? और इस प्रोसेस में हम काफ़ी सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. तो अब हम जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे और एक एक करके उन सारे सिंबल्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कूल. तो आज के टॉपिक पे अगर हम शुरू करें, सॉरी पेन सेलेक्ट ही नहीं किया मैंने, या तो आज के टॉपिक अगर हम शुरू करें तो दैट इज फ्लो चार्ट, राइट? सो फ्लो चार्ट में वी आर ट्राइंग टू लर्न अबाउट सिंबल्स. तो सिंबल्स में क्या है? द वेरी फर्स्ट सिंबल दैट वी यूज इज एक्चुअली कॉल्ड, मैं क्या कह सकता हूँ इसको, एक टर्मिनल कह दूँ. दिस इज अ टर्मिनल,
इस सिंबल का नाम है टर्मिनल। तो ये सिंबल क्या है टर्मिनल की? दिस इज एन ओवल शेप, एक ओवल शेप, परफेक्ट ओवल नहीं बनी है बट इट इज मोर और लेस देन एन ओवल शेप। टर्मिनल जो है ये एक ओवल शेप से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसका काम क्या होता है भैया? इसका काम होता है टू इंडिकेट द स्टार्ट एंड स्टॉप, and sometimes you can also indicate pause of a program flow। समझ में आई बात? तो जब भी मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, या फिर कहीं बीच में कोई एरर या फिर किसी चीज़ की वजह से पॉज हो रहा है, तब हम टर्मिनल का यूज़ करते हैं। समझ आई बात? सो टर्मिनल को क्या हम भैया स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट में इंडिकेट कर सकते हैं? यस, बिकॉज इट इंडिकेट स्टार्ट एंड स्टॉप। सो व्हेन यू स्टार्ट द प्रोग्राम, सबसे ऊपर आएगी क्या? टर्मिनल। सबसे लास्ट में आएगी क्या? व्हेन यू एंड द प्रोग्राम, तो टर्मिनल। तो ये दोनों ओवल शेप टॉप एंड बॉटम में डेफिनेटली हमेशा याद से रखना ही रखना। विदाउट दैट फ्लो चार्ट का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, है ना? नेक्स्ट हम शुरू करते हैं दूसरी सिंबल पे। सो व्हाट इज द नेक्स्ट सिंबल? तो जो नेक्स्ट सिंबल होती है इट इज एक्चुअली अ पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम का क्या नाम होगा? इट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट। दिस इज एक्चुअली अ पैरेललोग्राम। ठीक है? और इनपुट आउटपुट से मतलब क्या हुआ? इनपुट आउटपुट से मतलब हुआ whenever I have something to accept from the user, or if I have an output so that I can present it back to the user, then I use this parallelogram in my flowchart, right? तो इसका क्या यूज है? I use it to take input और output purpose। ठीक है? So let us first understand the different symbols और इसके बाद with hands on example we will try to understand कैसे इसको हम application में लाएंगे। The third thing that we have to understand, उसको हम कहते हैं processing। उसको हम क्या कहते हैं? processing। तो processing में क्या होता है? processing में we use the symbol of a rectangle। Now what does this do? Every arithmetic instruction in a program is done inside a processing symbol जो कि है एक rectangle। तो कोई भी arithmetic instruction है उसको हम embed करेंगे inside a rectangular symbol। तो भैया अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन से आपका क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन? दिस कैन रेंज फ्रॉम एनीथिंग, लाइक इफ यू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, कोई वेरिएबल लेके आप उसको वैल्यू दे रहे हो लाइक आई इक्वल्स टू 1, और इफ यू हैव अ परफॉर्मेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक a इक्वल्स टू b प्लस c, b इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई d, या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर माइनस, कुछ भी, any arithmetic operation or instruction has to be embedded inside the processing because you are actually processing something, right? To take the literal meaning and you try to understand this concept. Next we go to the fourth point, that is terminal हो गई, input output हो गई, processing हो गई। What comes next? That is decision। next जो symbol है it is used for making decision। तो decision में अपन क्या करेंगे? डिसीजन में वी विल बी यूजिंग दिस डायमंड शेप। ठीक है? तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस ऑफ डायमंड शेप एंड व्हाट डू वी एक्चुअली मीन व्हेन वी यूज द टर्म डिसीजन? डिसीजन इज व्हेन वी हैव टू एक्चुअली डिसाइड अपॉन समथिंग। लाइक इफ आई आस्क यू टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबरों में से ग्रेटर कौन सा है ये फाइंड आउट करना है किसी प्रोग्राम से, सो आई हैव टू एक्चुअली मेक अ डिसीजन, राइट? So if I accept two numbers a and b, I will have to actually make a decision na कि if a greater than b, it means that a is the largest number, or in the other case if b is greater than a, it means that b is the largest number. So this is actually what we call decision making, that I have to decide which number is greater than the other. Clear enough? तो इसीलिए ये जब ऐसी कुछ डिसीजन मेकिंग होगी तो इसको हम इंक्लूड करेंगे ऐसे डायमंड शेप के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। Now we come to the fifth point, that is the final one, which are called connectors. Okay, connectors। connectors का काम क्या होता है? whenever you are making a flow chart and you feel like that the flow chart is थोड़ी बड़ी हो जा रही है या फिर उसको थोड़ा समझाने में मेरे को थोड़ी और ज़्यादा लाइन लगेंगी, so these connectors prove to be very helpful। ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे used when flow chart
long. और in order to connect all these, what will you use? बहुत common sense की बात है. We will be using connecting lines, जो कि हम यूज करते हैं arrows इनकी मदद से. आई बात समझ में? तो इसमें कुछ समझाना नहीं है कनेक्टिंग लाइंस में. कनेक्टिंग लाइंस हम एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस कम टू दी हैंड्स ऑन सेशन. लाइक अब हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ. तो दी वेरी फर्स्ट एग्जांपल विल बी दी एग्जांपल जो मैंने दिया आपको. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स ना करके ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स कर देते हैं. दैट वुड बी गुड एग्जांपल. तो प्रिंट इज ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स. तो सबसे पहले अपन ने क्या डिसाइड किया था? स्टार्टिंग और एंडिंग अपन को वही फिक्स्ड रखनी है. ठीक है. तो स्टार्टिंग तो पहले आंख मूंद के लिख दो, स्टार्ट. ये तो लिखना ही लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इसमें 3 नंबर में से कौन सी बड़ी है वो डिसाइड करनी है. तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? वीडियो को पॉज करना, सोचो. तो सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि मैं यूजर से 3 नंबर इनपुट लूंगा. राइट. सो दिस विल गो ऑन. तो यूजर से इनपुट, जब इनपुट आउटपुट की बात थी तो हम लोग कौन सा यूज करते थे सिंबल? वी वेर यूजिंग अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम यूज करते वक्त वी विल टेक रीड ए. लेट अस अज्यूम हमारे 3 नंबर्स हैं ए बी सी. रीड ए. नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा? दूसरी नंबर इनपुट लेना, रीड बी. नेक्स्ट हमारी काम क्या होगी? तीसरी नंबर इनपुट लेना, दैट इज रीड सी. ठीक है. 3 नंबर हमने इनपुट ले ली. अब हम आगे बढ़ते हैं. 3 नंबर इनपुट लेने के बाद हमारा अगला काम क्या है? टू फाइंड आउट द ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स. एंड फॉर दिस व्हाट डू वी हैव टू डिसाइड? वी हैव टू मेक अ डिसीजन कि विच नंबर इज ग्रेटर देन द अदर 2 नंबर्स. ठीक है. नाउ दिस प्रोग्राम कैन हैव मल्टीपल आउटकम्स. ए भी हो सकता है बड़ा दोनों में से, तीनों में से. बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है. राइट. तो हम इसको कैसे करेंगे? ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. अगर हम ये आगे गए एंड इफ यू हैव टू इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन मेकिंग डिसीजंस, तो वी विल बी यूजिंग द डायमंड शेप. राइट. तो हमने डायमंड शेप यूज की. डायमंड शेप में इफ वी इंक्लूड कि ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर ऐसा है कि ए ग्रेटर देन बी है एंड ए ग्रेटर देन सी है, तो क्या इसके बाद हम ये लिख सकते हैं इफ इट इज ट्रू, यानी यस, या फिर यहाँ पे आप ट्रू भी लिख सकते हो. इफ इट इज ट्रू तो मैं क्या लिख सकता हूँ वहां पे? बताओ. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि a इज द बिगर नंबर. और इसको मैं किस बॉक्स में लिखूंगा? इसको मैं किस बॉक्स में लिखूंगा? इसको मैं पैरेललोग्राम वाले बॉक्स में लिखूंगा, बिकॉज इनपुट आउटपुट हम इसमें लिखते हैं. राइट. तो a इज द बिगर नंबर. a भी लिख सकते हो या फिर a इज द बिगर नंबर. मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे. बट व्हाट इफ इट इज फॉल्स? देन वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट कंडीशन, है ना. नो या फिर फॉल्स. तो अपन नेक्स्ट कंडीशन में जाएंगे, वो चेक करेंगे. व्हाट इफ b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c? तब क्या होगा अगर ये ट्रू हो गया? तो ये ट्रू हुई तो b इज द ग्रेटर नंबर, है ना. बट अब अगर ये भी फॉल्स हो गई तो और क्या ही नंबर बचता है? एक ही नंबर बचता है जो कि है c. सो c इज द ग्रेटर नंबर. इसके लिए मुझे चेक ही नहीं करना पड़ेगा. ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो बचा क्या? सी है. तो सी होगा आंसर मेरा. प्रीटी सिंपल. तो जब सी हो गया तो इसके बाद मेरा क्या काम क्या बनता है? मुझे अपनी फाइनल नंबर पता चल गई. तो अब की बार हम क्या करेंगे? प्रोग्राम को हमने कर दी एंड. आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो अब हमारा ये एक एग्जाम्पल के साथ हमें समझ में आ गया. नाउ लेट अस डू अनदर एग्जाम्पल टू गेट दिस इवन मोर क्लैरिटी, टू गेट इवन मोर क्लैरिटी इन दिस. ठीक है. तो जो अगली प्रॉब्लम है हम करने वाले, उसको लेट अस नेम इट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और लीव प्रोडक्ट सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स. तो
इसकी जो है सेम चीज, स्टार्टिंग तो ऐसे ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें काम क्या करना है, 2 नंबर इनपुट लेना है, रीड ए रीड बी, 2 नंबर अपन ने इनपुट ले लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सम के लिए क्या है, मुझे एक और वेरिएबल चाहिए होगी विच विल बी कैलकुलेटिंग द सम एंड ऑल्सो स्टोरिंग इट इनसाइड इट, राइट। जैसे ए एक नंबर होल्ड कर रहा है, बी भी एक नंबर होल्ड कर रहा है, तो सम भी तो किसी में स्टोर होगी ना। तो वी विल बी टेकिंग द इनपुट ऑफ सम, सम बोल के एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, सम जो वेरिएबल होगा दैट वो कौन से वाले बॉक्स में हम स्टोर करने वाले हैं, उस बॉक्स में हम स्टोर करेंगे, वो होगी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में सम को स्टोर करना। अब आप पूछोगे भैया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे रीड बी जब यूजर से कर रहे हैं, तो हम इनिशियली, वो क्या होता है कि दो चीज़ें होती है, एक चीज़ होती है आप वेरिएबल को यूज़र से इनपुट लो, जहाँ यूज़र की फ्रीडम होती है, वो कोई भी अपने मन का नंबर दे सकता है। और एक होता है कि आप वेरिएबल में अपने से ही कोई वैल्यू पहले से इनिशियलाइज कर दो, वहाँ यूज़र की कोई फ्रीडम नहीं होती है, वो वेरिएबल पहले से ही वो नंबर लेके चलता है। Repeating myself in English, whenever you are taking or accepting variables, you have two types, you have two kind of liberties. Either you can accept a variable from the user, in that case what happens is the user has the liberty to take any number in that scenario, and he can make that variable accept that number. Clear enough. और सेकेंड जो हमारी कंडीशन होती है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज दैट वी आर ऑलरेडी एक्सेप्टिंग अ वैल्यू बिफोर हैंड, and due to that what happens is we cannot overwrite that value which we have already initially taken. तो अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं सम को, तो सम को अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, रीड ए और रीड बी हमने ली है, तो रीड ए और रीड बी जो है हम यूजर से ले रहे हैं, तो यूजर कोई भी नंबर यहाँ पे डाल सकता है, राइट। बट सिंस वी आर टेकिंग सम हियर, तो सम को हम क्या कर रहे हैं, सम इक्वल्स टू 0 रख रहे हैं, बिकॉज इनिशियली बिफोर वी कैलकुलेट ए एंड बी, द वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो दैट इज वाई वी आर परफॉर्मिंग एन अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन हियर, वी आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन दैट सम has to be equals to 0. We are initializing a number to sum. This is a form of an arithmetical instruction, and that is why it has to be embedded inside a rectangular box. Clear? अब आगे बढ़ते हैं। सम हमने 0 रख ली, तो अब हमारा अगला काम क्या होगा, अगला काम हमारा ये होगा कि वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो इसमें क्या कोई चेकिंग की पोर्शन आ रही है, कुछ भी आ रहा है, या फिर कोई भी चेकिंग वेकिंग आ रही है, नहीं आ रही है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी डूइंग इज कैलकुलेटिंग द सम, ठीक है। दैट इज सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी डूइंग। और इसके बाद जब सम कैलकुलेट हो गई, तो हम इसको प्रिंट कर देंगे। हाउ वी विल बी प्रिंटिंग, इसको हम प्रिंट करेंगे पैरेललोग्राम बॉक्स में, सम प्रिंट करना है, ठीक है, प्रिंट दी सम, और उसके बाद हमारी प्रोग्राम हो गई एंड। क्लियर, ये हो गई हमारी सम ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो अब मुझे लगता है विद दीज टू एग्जांपल्स तुम्हें फ्लो चार्ट की क्या होती है प्रॉब्लम, कैसे करते हैं, समझ में आ गई होगी। द सेम थिंग विल बी डन इन केस ऑफ प्रोडक्ट, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हो, ठीक है, सेम चीज़ तुम्हारे लिए होगी। नाउ इसको समझने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम जाओ इंटरनेट पे, थोड़ी और रिसर्च करो इसके बारे में, थोड़े और कुछ एग्जाम्पल्स देखो और समझो। नाउ टू मेक दिस वीडियो बिट कॉन्साइज, ताकि ज़्यादा एक्सटेंड ना हो वीडियो, मैं तुम्हें दो एग्जाम्पल्स और अच्छे से इसको समझा दिया है, एंड आई एम गिविंग यू टू असाइनमेंट्स टू डू एट होम। वन ऑफ देम इज मेक फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग सम ऑफ नो नॉट सम तो अपन ने कर ही लिया, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एंड अनदर वन जो है विच इज मेक फ्लो चार्ट
for finding product of two numbers हो गया. So what we can do here for finding prime numbers, ठीक है. That is for finding if a number is prime number or not. एक नंबर इनपुट लेना है and you have to find it out if that particular number is prime number or not. ठीक है. You know every concept. Rewatch this video if you have any doubt anywhere, और अगर कोई doubt हो drop it down in the comment section below. I will be answering each and every doubt that you guys will be having. ठीक है. कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना है इस वीडियो को, सो दैट द नेक्स्ट सेशन दैट वी विल बी हैविंग यू डोंट मिस इट. बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाली आने वाली, एंड जितनी भी वीडियोस अब निकलेंगी वी विल बी गोइंग, बहुत अच्छे से सारी वीडियोस हम कवर करने वाले हैं, काफ़ी अच्छे पेस में चलने वाले हैं. तो एक भी वीडियो अगर तुम मिस करोगे तो आप एक सेशन पीछे हो जाओगे एंड दैट विल कॉस्ट यू. तो इसीलिए डू लाइक, शेयर among your friends and definitely subscribe कर लेना चैनल को, because each and every session is important. ठीक है. up until the next video, हम अगले वीडियो में फ्लो चार्ट्स में अगर कोई डाउट होगी तो उसको हम वो एक्नॉलेज करेंगे. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग pseudocodes. Pseudocodes is the next step in the initial introductory sessions of C++. उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे लॉजिक डेवलपिंग तुमको समझ में आएगी. So that is also a very important session that you guys will be having. Do like, share and do subscribe it, and definitely do visit Newton School's website online. तब तक के लिए अगली वीडियो आने से पहले बाय, हैव अ ग्रेट टाइम एंड डोंट स्टॉप कोडिंग. बाय बाय.